गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स इन द मीडिया। सबको मीडिया फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। आज हमारा यहाँ में एक स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस है टू अनाउंस द जॉइनिंग ऑफ फॉर्मर एमएलए फ्रॉम रायमा वैली श्री धनंजय त्रिपुरा, जिन्होंने कल अपना रेजिग्नेशन इस्तीफ़ा दिया टू द स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर, और आज वो ऑफिशियली तिपरा मोथा पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। विथ मी ऑल्सो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ तिपरा मोथा विजय कुमार रांखोल। यहाँ में हमारे ईएम हैं फ्रॉम रायमा वैली राजेश त्रिपुरा, एमडीसी श्री रविंद्र देबबर्मा, रुनिल देबबर्मा, हंस कुमार त्रिपुरा, एंड हमारे विमेन प्रेसिडेंट भी है यहाँ में गणेश देबबर्मा, और हमारे विमेन TWF के न्यूली अपॉइंटेड वुमेन प्रेसिडेंट सपना देबबर्मा भी यहाँ में है। मीडिया फ्रेंड्स, आपको सबको मालूम होगा कि कल धनंजय त्रिपुरा ने अपना इस्तीफ़ा दिया था ऑनरेबल स्पीकर को, और फॉर्मेलिटीज़ क्लियर होने के बाद आज ऑफिशियली धनंजय त्रिपुरा हैज़ जॉइन तिपरा मोथा। We welcome him to the family of तिपरा मोथा। वेलकम भाई कहाम लामसोगो धनंजय, हम इनको स्वागत करते हैं। एंड आई नाउ लीव द फ्लोर टू धनंजय त्रिपुरा टू गिव अ फ्यू वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू ऑल। इसके बाद यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, विल बी फ्री हैप्पी एंड मोस्ट वेलकम टू गिव यू द आंसर्स। हम भाई धन्यवाद সবাইকে। আপনারা জানেন আমি 2018 কোয়ালিশন গভর্নমেন্টে রায়মা ভ্যালি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলাম, এবং আমি আইপিএফটি 2014 থেকে, এটা আমার প্রথম আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ছিল আমার আইপিএফটিতে, এবং দীর্ঘ 8 বছর ধরে আমি এক আঞ্চলিক দল আইপিএফটির সঙ্গে জড়িত ছিল। আজকে গতকালকে আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে আমাদের ভূভাগরা সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আজকে, যেহেতু ভূভাগরা সবাইকে ডাক দিয়েছেন এসে তিপ্রাসা, আমি একজন তিপ্রাসা হয়ে যে মহারাজা আমাদের জন্য যে মাঠে নেমছে, আমাদের জন্য লড়াই করছে, আমি ব্যক্তিগত এই পরিস্থিতিতে মহারাজার সহযোগিতা করা এবং মহারাজার কাছে এবং মহারাজার সংগঠনে তিপরা মোথার কাছে সামিল হয়ে কাজ করা এবং মহারাজাকে সহযোগিতা করা, এটা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আপনারা জানেন সবাই আইপিএফটি যে ডিমান্ড এবং আমাদের মহারাজার যে ডিমান্ড ইকুয়াল ত্রিপুরাল্যান্ড, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। আমাদের মহারাজা যে সকলকে আহ্বান করেন যে আমরা সবাই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ত্রিপ্রাসার উন্নয়নের জন্য লড়াই সংগ্রাম করে ময়দানে নেমেছে আমরা সবাই। আমি এই মুহূর্তে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল থাকতেই পারে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলতেই পারে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মহারাজাকে সহযোগিতা করা এবং মহারাজা একা নয়, আমরা সবাই ত্রিপ্রাসা আছে, 12 লক্ষ ত্রিপ্রাসা। আমি 12 লক্ষের মধ্যে আমিও এই ধনঞ্জয় ত্রিপুরা আমিও এখানে আছি। এই সময়ে মহারাজাকে সাহায্য করা এবং মহারাজার হাতে হাত মিলে আমরা কাজ করার জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়েছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আজকে আমার সাথে ফুল আমাদের রায়মা ভ্যালি নেতৃত্ব রয়েছেন, আর কমসে কম 100 জনের লিডার এসেছেন আজকে, এবং আগামী দিনে আসবে, এবং আগামী দিনে বিভিন্ন দল থেকে আসবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসবে, শুধু আইপিএফটি নয়। আমি শুধু রায়মা ভ্যালি থেকে নয়, আগামী অন্যান্য লংতরাই ভ্যালি থেকেও, করবো থেকেও, এমপি থেকেও
অনেকটা কয়েকটা জায়গা থেকে বিভিন্ন দল থেকে আমরা আইপিএফটি মহারাজার দলে সামিল হবেন এবং বিভিন্ন লিডার আমার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছেন এবং বিভিন্ন কিছু এমএলএরাও রয়েছেন। তারাও আমাদের মহারাজার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মহারাজের যে আইডিওলজি, মহারাজের যে মিশন, আমরা সবাই সহযোগিতা থাকবো এবং সহযোগিতা করব। হাতে হাত মিলে আমরা মহারাজার সংগঠন আমরা সামিল হব। আমরা সব লিডাররা এখন যোগাযোগ রয়েছেন, আপনারা দেখবেন। বর্তমান এটা জাস্ট একটা প্রতিদিন আপনারা দেখছেন বিভিন্ন দল থেকে আসছেন। এখন আমাদের মহারাজা ছাড়া এই আমাদের রাজ্যের 12 লক্ষ ত্রিপুরাকে মুক্তি দেওয়ার মতো আর কোনো আমি মনে হয় না। বিভিন্ন লিডাররা আছে, বিভিন্ন আইডিওলজি নিয়ে কাজ করে, কিন্তু প্রকৃত লিডার, আমরা প্রকৃত লিডার দরকার। আইপিএফটি হয়তো বা 2009 থেকে দীর্ঘ বছর ধরে একটা আঞ্চলিক দল ত্রিপ্রাসাদে নিয়ে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আইপিএফটি গার্জেন ছাড়া গড় হয়ে গেছে এবং আইপিএফটি সেই গার্জেন ছাড়া গড় এবং কতদিন সেই গড়টা টিকবে এটা একটা সন্দেহ আছে। বর্তমান মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামছে, আমরা সবাই এই যে ত্রিপুরাসা হিসেবে আমরা এই মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে ডাক, আমরা সবাই সহযোগিতা এবং প্রস্তুতি নিয়ে এবং মহারাজার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি আজকে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এমএলএ অস্থায়ী পোস্ট এসে ত্রিপুরাসা আমি দফায় সব থেকে বড়, সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এমএলএ 5 বছর জন্য এবং দফা হয়েছে 7 বছর জন্য। সেই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী দিনে আর কিছু লিডার আসবে, আপনারা দেখবেন। ধন্যবাদ। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? अगर कोई सवाल है? सर मेरे एक सवाल था। हाँ। 2018 का जो इलेक्शन है तब से आप लोग त्रिपुरालैंड को लेकर आईपीएफटी बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया 4.5 साल में जो त्रिपुरालैंड का जो प्लान था आपका वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया? एक्चुअली आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा आईपीएफटी गलत किया विदाउट रिटेन। ये आप लोग जानते हैं, ये आईपीएफटी का सबसे ज़्यादा यूथ लोग ने काम किया है 2016, 17, 18। जो त्रिपुरा में सरकार आया था उसका हाथ यूथ आईपीएफटी का होता है। उसके बाद आज 4 साल में आप लोग देखा है त्रिपुरा स्टेट में क्या हुआ। आज में कंपेल जो घर में विदाउट गार्जियन, तो उस घर में कितने दिन रहेंगे वो बहुत सोचने का बात है। इसलिए मैं अभी महाराजा जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो सबके लिए, जो स्पेशली त्रिपुरासा के लिए जो अभी फाइट कर रहे हैं, हम लोग एज ए त्रिपुरासा अभी महाराजा के साथ देना है। इसलिए मैं अभी महाराजा के साथ में आया हूँ इसको सोच। तो आप लोग जब आईपीएफटी में थे, जब 4.5 साल तक त्रिपुरालैंड के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो बीजेपी वालों ने आपका साथ नहीं दिया क्या इसके रिगार्डिंग? आप लोग ने देखा है आफ्टर इलेक्शन असेंबली में मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ और एक्स एमएलए विशु की जो बहुत बार कोशिश किया है। मेरे एक क्वेश्चन भी है, मैंने त्रिपुरालैंड के लिए क्वेश्चन भी किया, वो भी कैंसिल हुआ, आप लोग जानते हो। मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ, क्योंकि जिस घर में गार्जियन नहीं है उस घर में तो इतना दिन नहीं आप लोग देखा है ये, और मैं बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, सब लोग जानते हैं। আপনারা জানেন আমাদের এনসি দেববর্মা আমি শ্রদ্ধা করি, সিনিয়র লোক, সেই তো ওখানে অসুস্থ। যদি একজন ফাউন্ডার অফ আইপিএফটি এবং যে গার্জেন তাই নিয়ে যদি অসুস্থ, তো ওই গার্জেন ওই গড কীভাবে চলবে আপনার বুঝছেন নিশ্চয়ই। डिमांड को लेके आईपीएफटी पॉपुलर हुआ था त्रिपुरालैंड, उसको आप लोग फुलफिल क्यों नहीं कर पाए 4.5 साल? अब
एक बार भी आप लोगों ने असेंबली में उठाया नहीं, एक एमएलए की बात। नहीं, आपने उठाया था, कैंसिल किया ना। ना, मैंने बोला था, मैंने क्वेश्चन भी किया था, मेरा क्वेश्चन कैंसिल भी हुआ। मैं वो उसका प्रूफ भी है मेरे पास, जो मैंने क्वेश्चन किया है। तो हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया है। ये नहीं कि एमएलए लोग जो जिस डिमांड को लेके हम लोग जिस मुद्दा को लेके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, उस मुद्दा को हम लोग कभी भी रेस नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत बार कोशिश किया असेंबली में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी ने क्लियर बोला है कि वी डोंट सपोर्ट पिपरालैंड डिमांड, बट ट्राइबल लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने निर्मला सीतारमण ने एक पैकेज डिक्लेयर किया है 1300 करोड़ का, अलग पैकेज वो लोग बोल रहे हैं। आप लोग कितना इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम ये पैकेज वाला ये ना बोलने से अच्छा है। पैकेज लेके हम लोग त्रिपुरा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। हम लोग मुक्ति चाहिए तो ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए। मेन मुद्दा अभी महाराजा जितना भी हम लोग के लिए जो काम कर रहे हैं उन लोग को, इसलिए हम लोग अभी त्रिपुरालैंड, ग्रेटर त्रिपुरालैंड अभी महाराजा है गार्जियन हमारा, जिस गार्जियन को विश्वास करके हम लोग ने फाइट किया है, उस घर में अभी कमजोर हुआ, उस घर अभी विदाउट गार्जियन अभी घर हुआ है। तो एक घर चलने अलग बात हुआ, गार्जियनलेस, पर फाइनेंशियल बेनिफिट के सिवा कैसे डेवलप? आप देखें 4 साल में जो त्रिपुरा में कितना डेवलप हुआ, ये तो मैं अलग से बोलने का जरूरत नहीं है। स्पेशली एडीसी एरिया में अब क्यों अगरतला में स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होता है, तो एडीसी में क्यों नहीं? एडीसी में कुमिल्लू में करो स्मार्ट सिटी, व्हाई नॉट? Dhananjay, do you feel that development has not happened in the tribal areas under ये फ्रॉम रेमा वैली। आप तो रेमा वैली से हैं, आप बोल अपना बोल। क्या आपको लगता है कि भाजपा के सरकार के जमाने में जिसमें आपके पूर्वी पार्टी आईपीएफटी भी शायद एक पार्टनर, तो उस भाजपा आईपीएफटी की सरकार में ट्राइबल्स के डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? एक दूसरा सवाल सर, कि जब आपने बोला अभी कि विदाउट गार्डियन है आईपीएफ, तो हाल ही में एक मसला सामने आया था कि आपके पूर्वी पार्टी के एक लीडर प्रेसिडेंट चुने गए थे, उसके बाद आपके फाउंडर लीडर केम बैक एंड सेड आई एम द वैलिड प्रेसिडेंट। उसमें काफी चर्चा भी हुआ था। तो क्या आपको लगता है ये जो इंटरनल टेक ओवर ऑफ लीडरशिप था आईपीएफटी में, क्या ये कहीं पे रिस्पॉन्सिबल रहा होगा कि आपका आईपीएफटी गार्डियनलेस हो गया? आपको लग रहा है क्या उसमें कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा? देखिए, आप लोग मीडिया वालों के, आप लोग के पास सब लोगों की खबर है, कौन कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन से लीडर क्या हुआ है, आप लोग के पास सब खबर है। मैं एक्स्ट्रा बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो अभी त्रिपुरा में जो पिछली सरकार के जो डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं, स्पेशल आप बोलो ना, एडीसी में क्यों 5,000 करोड़ भेजो? लास्ट बजट सीजन में 26,000 करोड़ बजट किया है, तो एडीसी में कितना करोड़ दिया है? तो इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, यहाँ इक्वल होना चाहिए, राइट टू इक्वल है, सबको इक्वल के देखो, डेमोक्रेसी सबके समान है, सबके राइट है। आप अगरतला में 1,000 करोड़ आप बजट कर सकते हैं, एडीसी कुमिल्लू में करो। आप अगरतला में स्मार्ट सिटी आप कर सकते हैं, कुमिल्लू में करो। एक डेमोक्रेसी कंट्री में सबके समान होना चाहिए, डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए। सिर्फ डेवलपमेंट से नहीं होगा। हम लोग त्रिपुरा का जो आइडेंटिटी क्या है, वो उसके बारे में गवर्नमेंट भी सोचना चाहिए। Government should think about the identity of the indigenous people. और कोई सवाल होगा तो आप बोल दीजिए। और कोई? हाँ, फक्सले। नहीं, इसका क्वेश्चन का सवाल मैं दूंगा। जब कोई तिपरासा मोथा में ज्वाइन करता है तो कंडीशन लेके ज्वाइन नहीं करता है। अगर कोई टिकट के लिए आ रहा है तो वो पहले से, यहाँ में हमारे फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हंसु कुमार त्रिपुरा है, ही ज्वाइन। इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे टिकट दो तभी मैं तिपरा मोथा में आऊँगा। धनंजय आया है, ही इज़ नॉट सेड दैट मुझे टिकट दो मैं तिपरा मोथा में आऊँगा। जब ऋषिकेतु आज से 2 साल पहले आया, उन्होंने कुछ कंडीशन नहीं रखा। ये अनकंडीशनल है। पब्लिक भी जानती है कि कौन टिकट के लिए आता है और कौन दफा के लिए काम करने के लिए आता है।
तो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन, प्रेसिडेंट इज हियर, आई एम द चेयरमैन, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। नीदर धनंजय, नो हंसो, नो वृषिकेतु ने कभी भी अपना टिकट के लिए निगोशिएट करके तिपरा मोथा में आया। दे हैव कम बिकॉज दे वांटेड टू सर्व द तोहफा और इसी के लिए आया है, वरना इलेक्शन के 3 महीने बाद आते हैं, इलेक्शन के 1 महीने पहले आते हैं। वो अगर चुनाव को लड़ना ही है तो एलिजिबल कैंडिडेट किसको आप चुनेंगे? आप भी लड़ लीजिए, अगर आप काम करेंगे आपको मैं टिकट दे दूंगा। ये इलेक्शन कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ये 5, 20, 25 कैंडिडेट का लिए इलेक्शन नहीं होगा, ये इलेक्शन होगा 13 लाख तिपरासा का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए। अगर आपको कैंडिडेट रखना है, मैं खुद नहीं लड़ रहा हूं, ये कैंडिडेट का फाइट नहीं है, ये फाइट है फॉर सेफ गार्डिंग आवर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। तो ये बात क्लियर है। आप अगर इसको सिर्फ ये 2018, 2013, 2008 जैसा इलेक्शन नहीं है, ये एक अलग इलेक्शन है, इसमें हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तिपरासा उसी को वोट, तिपरा मोथा को क्यों वोट करेगा? क्योंकि तिपरा मोथा पार्टी से पहले कम्युनिटी का वेलफेयर को आगे रख रहा है। अगर हम लीडर को सामने रखेंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं जो आज तिपरा मोथा में नहीं है लेकिन अपने एरिया में 0 है, क्योंकि पब्लिक को कुछ चाहिए, पब्लिक डिमांड समथिंग। तिपरासा पीपल का कोई डिमांड है, उसी को आगे रख रहे हैं हम लोग। और उसके बाद जो कैंडिडेट का बात है वो लास्ट में डिसाइड किया जाएगा। हम लोग इंटरनली बैठकर, प्रेसिडेंट, आई एम देयर, हम लोग का एक सिस्टम है, हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे। अभी हमको अपना एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करना है फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड। अच्छा, एमएलए बाबा फाइनेंस खालो एबो एमएलए रो फाइनेंस को फाको हमारा तो अब जरा फाइकानो नाय जोगाजोग खाई दङ विभिन्न दलनि फाइनाय नानु खातिर फाइ दङ যদি महाराजा जेहेतु चिनि गार्जेन जतन कबई दङ अ जरागा जों एज ए तिपरासा हिसाबै जों ताम साबो ताम खायाबो नायाबो पुष्ण तरजायबो ताबो जरागो जों महाराजानि जे ग्रेटर तिपरालेण्ड जे जतन कबमुङो जों फाइनानो उचित এবং ফাইনাই আগামী দিনে আবানি বিশ্বাস এবং বিভিন্ন লিডারও যোগাযোগ খাইছে। Say a bit in Bengali also in Kogan. I think our president would like to say something, please. যতন ভাই কাম, থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে আমাদের গৌরবের দিন। মাননীয় ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সিটিং এমএলএ সব কিছু উনি টেক করেন এবং ত্রিপুরা মোথা আমাদের চেয়ারম্যান মহারাজ প্রদ্যুৎজির আহ্বানে কলে উনি আসছেন। ওনাকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি ধন্যবাদ দিই এবং ওয়েলকাম করি। ওনাদের হংসবাবু আছেন, ওনাদের বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অধিকাংশ এমএলএ তারা ফ্রাস্ট্রেটেড। হেডলেস ট্রেন, ইঞ্জিনবিহীন ট্রেন চলতেছে এরকম একটা শুনতেছি, মানে গার্জেন নেই ওনাদের বক্তব্য। কাজে আমরা মনে করতেছি যে ত্রিপুরা মোথা একটা সংস্থা যেটা আমাদের পুরো ত্রিপুরার জনসাধারণের, শিডিউল ট্রাইব হোক, নন শিডিউল ট্রাইব হোক, যে কোনো কমিউনিটির পক্ষে আমরা বক্তব্য রাখি। এবং ত্রিপুরার গ্রেটার ত্রিপুরা মানে ত্রিপুরার মধ্যে উইদিন স্টেট এটার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন জনসাধারণের যে প্রয়োজন এইগুলি আমরা অ্যাড্রেস করার আমাদের ভিশন আছে। যে যতদূর সরকার এখন বর্তমান যে সরকার আছে বিজেপি এবং আইপিএফটির, তাদের যে বক্তব্য তারা কতদূর এগুলি করতেছে আপনারা জানেন। আমার তো এত নজর নাই, কিন্তু সবারই পক্ষে যে বক্তব্য যে তারা কিছুই করার তারা আর সময় নাই গা। এখন তো তারা বলবে আমরা আর 5 বছর সুযোগ দেও, আমরা করব। বিগত 5 বছর কিছু করেন নাই, এটা আমি বলতেছি এরকম নয়। কিন্তু যারা এমএলএ আছেন, যারা মন্ত্রী আছেন, তাদের নিজস্ব বক্তব্য আমরা বুঝতে পারি যে
তাদের গভর্নমেন্টের ইঞ্জিনলেস ট্রেন, মানে ইঞ্জিন নাই এরকম একটা ট্রেন তারা চলতেছে। ওনারা প্রশ্ন আনছে বিধানসভায় on the floor of the house, but their questions have been rejected. They are unable to bring their questions on the floor of the house for the interest of the people. And we also have been in the assembly, and we tried our level best to bring the issue of the public. So today also, as our chairman has already said, we are very much united in the organization so that we can achieve something for the people through our greater triple land demand. So therefore today we are grateful, we are happy, we welcome our honorable member, those who come from the assembly and from the public position also, and we believe according to them, and we shall be able to manage the greater triple land in the state in the field of peace and tranquility also, that people may feel everybody is my brother, everybody is my sister. We work like that. We go everywhere, accepting some politician trying to moralize and give us some wrong color of communal, but we are never communal. It is the propaganda of the communist people also. So we are never communal. So today you have seen in Surma, not only in Surma, in different places, you can have a look and talk to the public. They will witness it, saying that no, Tripura Motha is never communal. It is for everyone. We want to work with everybody, and we have to see that our deprived population, there are different minority group in the state also. We should plead for them also. Therefore, one of our honorable MLA, he resigned today after he has been influenced by our chairman, Honorable Pradut Kishore Manikko, and after he made an appeal, it has reached to his heart also. It will be reaching to different hearts of the people, and we believe in days to come, we will be able to stand on our own foot with your cooperation, and you will be publicizing our approach, our mindset for the state. Thank you. I just want to say one thing. एक बात before thank you friends, आपने इतना समय लिया है. I know you all also have other press conferences to attend to. ये एक प्रोपेगेंडा है, एक बहुत malicious प्रोपेगेंडा है कि हम लोग कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ हैं. सबसे पहले let me assure and tell everyone, we want the development of all communities in Tripura. अगर ADC में डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो सच्चाई है, लेकिन ये और एक सच्चाई है कि ADC के बाहर भी बहुत लोगों को डेवलपमेंट नहीं मिला है. आज आप 10,323 टीचर्स के बारे जब हम लोग फाइट करते हैं तो वो सिर्फ तिपरासा नहीं, उसमें मणिपुरीज हैं, बंगालीज हैं, मुस्लिम्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं. जब हम लोग सुरमा से फाइट करते हैं तो एक हिंदुस्तानी चा बागान वर्कर को हमने जब सीट दिया, वो तिपरासा नहीं है. हम मणिपुरी विष्णुप्रिया से बात कर रहे हैं, मैतेई से बात कर रहे हैं. एससी कम्युनिटीज़ में बहुत बंगाली लीडर्स हैं जिनको डिनाई किया गया है, बहुत फेक एससी सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो हाँ, एक बात है कि मैं आपको डिनाई नहीं करूंगा कि इससे पहले रीजनल पार्टीज थे जिन्होंने एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच लिया था. लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं. आई एम फ्रॉम अ फैमिली विच हैज गिवन पेट्रनेज टू द ग्रेट नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस. हमने, कंचन प्रभा देवी ने शरणार्थियों को हेल्प किया, मेरे फादर ने हेल्प किया 71 युद्ध में, यहाँ में पैलेस के सामने हमने हेल्प किया. तो हम लोगों का फैमिली हमने कभी भी कम्युनल आउटलुक नहीं लिया है. लेकिन आज दरकार है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार अपने तिपरासा के बारे में बात करें. लेकिन मैं इसका भी आई एम ऑल्सो अवेयर
that there are lot of problems in outside ADC areas. Unemployment is a problem. जब बिजली नहीं आता है तो सबको अफेक्ट करता है. रोड अगर हमारे वहाँ में नहीं है तो अगरतला में भी, अगरतला के बाहर भी कोई खास अच्छा रोड्स नहीं है. स्कूल एजुकेशन सिस्टम, अगर हमने कहा है कि कॉकबोरॉक शुड बी स्पोकन इन रोमन स्क्रिप्ट, क्योंकि हम चाहते हैं इट इज नॉट फॉर रिलीजियस पर्पस, इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस. अगर आज हमारा बच्चा इंग्लिश और हिंदी सीखेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में अच्छा मिलेगा. तो इसी के लिए हमने ये डिमांड्स उठाया है. हमेशा हमारा डिमांड को एक कम्युनल कलर दिया जाता है. मीडिया, यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मीडिया. मीडिया हैज सफर्ड ऑल्सो. मीडिया हैज नॉट सफर्ड एनी लेस. मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स बदल चुका है त्रिपुरा में. एटलीस्ट रीजनल पॉलिटिक्स बदल चुका है. हम सिस्टम को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं. आई हैव गॉट फ्रेंड्स जो तापस दे, मैं बचपन से जानता हूं. हमारे इतने अच्छे बंगाली फ्रेंड्स हैं, बंगाली वेल विशर्स है. लखी नाग, मैं खुद कांग्रेस में प्रेसिडेंट था, हमने सबके साथ काम किया. तो ये लाइन की तिपरासा जब अपना अधिकार मांगता है तो वो किसी का अधिकार छीनने के बारे में बात कर रहा है, ये बात नहीं है. मैंने दूसरा बात आई वांटेड टू पुट, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट. ये आज मुस्लिम को टारगेट करके हिंदू का पेट नहीं भर रहा है. आज क्रिश्चियन को टारगेट करके बुद्धिस्ट का पेट नहीं भर रहा है. तो आने वाले दिन में क्या हम त्रिपुरा को क्या देखना चाहते हैं? वी वांट डेवलपमेंट फॉर ऑल. अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए. अगर रास्ता अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए. हेल्थ केयर में इतने लोग, आज से 2 दिन पहले हमारे चिन्मय कोलॉय अंबासा के ब्लॉक प्रेसिडेंट का डेथ हुआ. जॉन्डिस, मलेरिया, उसके बाद हेपेटाइटिस. जब तक जीबी हॉस्पिटल तक वो पहुंचा 4-5 घंटे में उनका देहांत हो गया. जब इतने मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम इतना खराब है इस स्टेट में, तो इसका सजेशन डेवलपमेंट तो होना चाहिए. आज पॉलिटिकल पार्टीज, आज त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर का बात है. लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? बाहर से लोग आके इन्वेस्ट क्यों करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइमरी रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा. तो ये सब इश्यूज है, इसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट इट. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अकॉर्डिंग टू मी. हाँ, बाइबल है, उपनिषद है, वेदास है, कुरान है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ लिखा है कि हमारा डिमांड इलीगल है या देश के खिलाफ है? हम अपना डिमांड रख रहे पीसफुली. हमने बंदूक नहीं उठाया. हम आप देखिए एडीसी में कुछ फाइट्स भी नहीं हुआ है बिटवीन तिपरासास एंड नॉन तिपरासास, बंगालीज एंड तिपरासास. 18 महीना हो गया है, एक फाइट नहीं हुआ है. इससे पहले छोटे छोटे जब आईपीएफटी ही था जिसके संग आपने गवर्नमेंट बनाया, अगरतला में कितना वायलेंस होता था, एडीसी में वायलेंस, रोड ब्लॉकेज होता था. हमने तो नहीं कराया. और हमारा फैमिली का एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए. वी आर नॉट लाइक दैट. वी आर पीपल हु अंडरस्टैंड. We understand the pain of the Hindu Bengalis in East Pakistan, and we feel that justice should be given to them, and we want justice to be given, but we also deserve some justice, we also deserve some right. And मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, इसके लिए मैंने कहा कि नेगोशिएशन या बात हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना चाहिए. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ बोलेंगे कि ये लोकल प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व करो, ये कभी सॉल्व नहीं होगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी बनता है हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अगर नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन अपने बलबूते में फाइट करेंगे. धनंजय हैज जॉइंड आवर पार्टी, वी वेलकम हिम. दूसरे पार्टी से भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक बात क्लियर होना चाहिए, आप टिकट के लिए आएंगे तो ये नेगोशिएशन नहीं होगा. अगर आप दफा के लिए आएंगे तो हाँ, हम बात करके बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं. एंड आई अपील टू द मीडिया वंस अगेन, प्लीज, ये पूजा भी खत्म हुआ है. आने वाले दिन में आज कल तक मालूम होगा कि विलेज काउंसिल इलेक्शन का डेट क्या है. प्लीज आई अपील कि त्रिपुरा में
वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए शांति से बैठ के होना चाहिए। त्रिपुरा में अगर वायलेंस हुआ तो रियल इशू को कोई बात नहीं करेगा। डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा होना चाहिए। तो मैं मीडिया से अपील करता हूं कि प्लीज इसको भी आप सामने रखिए। एंड जो 5-10 लोगों का एक पूरा षड्यंत्र है कि इसको त्रिपुरा सा बंगाली बनाए, ये घिसा पिटा हुआ पॉलिटिक्स ने त्रिपुरा को बर्बाद किया है। आज त्रिपुरा सा को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए और बंगाली को भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए। मुझे लगता है दोनों को ये मिल सकता है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये मिल सकता है। बस बेलाई नोहाम भाई, धन्यवाद, थैंक यू। एनी क्वेश्चन, अगर किसी को एक कोई क्वेश्चन है तो मैं बोल सकता हूँ। भारत, आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि इस प्रॉब्लम वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ, एंड दे हैव टू प्रोवाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, हाँ, इट्स देयर ड्यूटी, or else we shall fight the elections on our own might. हाँ, If there is a solution given to the government of India, it has to be in writing, जैसे धनंजय said, हाई पावर्ड कमिटी बना था 2018 में। आज फिर से अगर आई एंड अप गोइंग टू दिल्ली डूइंग दिस और कोई हाई पावर्ड कमिटी बन जाता है और उसमें कुछ लिखा नहीं गया है तो फिर से धोखा होगा। हमें जो भी चाहिए राइटिंग में चाहिए, एक क्लियर, देखिए आदमी लोगों को अब विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया एंड मैं जुमला में विश्वास नहीं करता हूं। अगर आपको कुछ देना है तो वर्बली नहीं होगा, राइटिंग में होगा, और ये राइटिंग में पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए, मीडिया के नॉलेज में होना चाहिए। वरना जैसे 2018 में हुआ, ये 2023 में हम रिपीट नहीं करने देंगे। दैट्स वेरी क्लियर। एक हाई पावर कमेटी ऑलरेडी बना था, कमिटी से नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री is the only competent authority to invite and discuss about our demand in writing for Greater Tripura land. Government of India, let Government of India invite us. Let's talk. Let's talk as respectable people. We are not underground group. We are not ISI backed पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात किया है, हम तो हिजबुल मुजाहिदीन नहीं है। वी आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। आई हैव ऑल्सो सेड दैट सिर्फ मुझसे बात करने से नहीं होगा। यहाँ में काउंसिल ऑफ त्रिपुरा सा हौदास है, समाजपति हैं, हौदा जमातिया है, क्षत्रिय समाज है, चुबलाई बुथू है, कास्काव है, हमारा कोलॉय समाज है, उनको भी आप बुलाइए, उनको भी स्टेक होल्डर्स बनाइए, सिविल सोसाइटी को भी स्टेक होल्डर्स बनाइए। और आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात मत कीजिए, पूरा समाज से बात कीजिए। जैसे नागालैंड में नागा हो से बात हो रहा है। ये सॉरी, ये बात मैंने मेंशन नहीं किया था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सबको इनवाइट कीजिए एक डायलॉग के लिए, और ये डायलॉग को सिर्फ इलेक्शन के नजरिए से मत देखिए। एक फाइनल सोल्यूशन, वी वांट अ फाइनल सोल्यूशन, और सोल्यूशन कभी नहीं होगा अगर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात करें। कम्युनिटीज को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमारे रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व कीजिए, हमारे हौदास को, ओकरास को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमें भी इन्वॉल्व कीजिए, और हम लोग सब बैठकर बात करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अगर ये नहीं होगा, अगर आप डिवाइड एंड रूल करेंगे, तो आई एम सॉरी, आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई रिस्पेक्ट everyone. I respect Prime Minister Narendra Modi ji, I respect Rahul Gandhi ji, I respect Sitaram Yechuri ji, but I love my people and I cannot mislead or betray them by compromising and not assuring them for what we started. I think it is very clear. It's a sincere demand. I don't know how long will we be able to continue this. I am not well, but till the time I am around, I'm not in a mood to cheat my people. मुझे अच्छा नाम चाहिए, मुझे अच्छा पैसा नहीं चाहिए, मुझे अच्छा कुछ सोल्यूशन चाहिए। एंड आई वांट द त्रिपुरा पीपल, द बंगाली पीपल, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द बुद्धिस्ट, द क्रिश्चियंस टू लिव पीसफुली बट डिग्निफाइड एंड विथ आवर राइट्स। दैट्स ऑल। थैंक यू। आपका डिमांड जो है वो राइटिंग में
स्वीकार करने के बाद भी अगर सेंटर ने नहीं दिया तो क्या करें? नहीं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नागरिक को झूठ बोलेगी राइटिंग के बाद, तो देखिए राइटिंग के बाद तो गवर्नमेंट अपना त्रिपुरा में जो इलेक्शन के समय में हाई पावर्ड कमिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। जब मैंने होम मिनिस्ट्री का बात किया है, अगर होम मिनिस्ट्री ये अश्योरेंस देता है देन दे कैन नॉट बैक डाउन, और टाइम फ्रेम के अंदर भी होना चाहिए। सिर्फ कि हम दे देंगे और उसके बाद चलते रहा, टाइम फ्रेम होना चाहिए। जब ये निगोशिएशन होता है देन मेनी चीज निकलता है। हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि हम लोग जुमला में फंस जाएंगे। आई थिंक जो 2018 में हुआ वो धोखा था, क्योंकि वो ठीक लाइन से नहीं गया। हम लोग वैसे ट्रैप में, जाल में नहीं फंसेंगे। थैंक यू।